السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آؤ عربی سیکھے کہ اس سبق میں آپ تمام ناظرین کا میں خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ تو آئیے آج کا ہم سبق شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آج کا جو سبق ہے ہمارا وہ بھی ایک الحوار ہے۔ الحوار کا مطلب ہوتا ہے کانورسیشن ہے، جو عربی میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اس کو ہم عربی میں الحوار بولتے ہیں۔ تو وہی الحوار ہے، اور آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جو موضوع ہے الحوار کا، جو بات چیت کا ٹاپک ہے، وہ ہے الصلاۃ یعنی نماز۔ صلاح یعنی نماز کی بات ہوگی، اور اسی کے اوپر آج سوال جواب بات چیت ہوگا۔ یہ جو الحوار ہے، حوار جو ہے، یہ بین مصطفیٰ و قزیب، یہ دو آدمی کے درمیان ہے، جو مصطفیٰ ہیں اور قزی ہیں۔ قزی اور مصطفیٰ کے درمیان میں یہ بات چیت ہونے والی ہے۔ تو پہلا جو آدمی ہے، انسان ہے، وہ ہے مصطفیٰ۔ مصطفیٰ اسم رجل، یہ ایک آدمی کا نام ہے، ایک مرد کا نام ہے۔ اور قزی جو ہے، یہ بھی قزی اسم رجل ایدن، یعنی قزی بھی جو ایک آدمی کا ہی نام ہے۔ تو ان دونوں کے بیچ میں بات چیت ہو رہی ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مصطفیٰ سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں قزی سے۔ قزی جو ہے قصی سے۔ تو پہلا سوال ہے این تصلی الصلاۃ الخمس۔ این کا مطلب ہوتا ہے کہاں، ویئر۔ تصلی یعنی پڑھنے کو بولتے ہیں، نماز پڑھنے کو بولتے ہیں۔ تصلی یعنی آفرنگ پریئر نماز کو بولتے ہیں۔ الصلوات، صلوات جو ہے جمع ہے صلاۃ کا، ایک وقت کی نماز کو صلاۃ بولتے ہیں، نماز بولتے ہیں، اور اس کا جمع ہے جو صلوات، یعنی کئی وقتوں کے نماز کو، ایک سے زیادہ وقت کی نماز کو صلوات بولتے ہیں، ایک سے زیادہ نماز کو صلوات بولتے ہیں۔ تو این، ویئر، تصلی، ڈو یو پریئر الصلاۃ، پریئر الخمس یعنی 5 ٹائم ویئر ڈو یو آفرنگ 5 ٹائم پریئرس، آپ 5 ٹائم کا نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ یہ سوال کر رہے ہیں مصطفیٰ پوچھ رہے ہیں قصی سے کہ آپ 5 ٹائم کا نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں مصطفیٰ، اصلی یعنی آئی پریئر، تصلی یو پریئر تم پڑھتے ہو، اصلی یعنی میں پڑھتا ہوں، اصلی میں پڑھتا ہوں، الظہر والعصر والمغرب والعشاء، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء میں پڑھتا ہوں، فی مسجد بلال۔ فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ان جس کو انگلش میں بولتے ہیں۔ تو مسجد بلال میں یہ ظہر، عصر، مغرب والعشاء، یہ 4 ٹائم کا جو نماز ہے میں مسجد بلال میں پڑھتا ہوں۔ آئی پریئر 4 ٹائم پریئر ان مسجد بلال۔ آگے مصطفیٰ کا سوال ہے، مصطفیٰ وَأَيْنَ تُصَلِّي الفجر، این تصلی فجر، فجر بولتے ہیں صبح کے، مارننگ کے نماز کو، اس کا ٹائم کو بولتے ہیں فجر۔ تو وَأَيْنَ اور کہاں، این کا مطلب ہوتا ہے کہاں، تصلی تم پڑھتے ہو، الفجر فجر یعنی صبح کا نماز، مارننگ پریئر، ویئر ڈو آفرنگ مارننگ پریئر۔ تو آگے اس کا جواب قصی دے رہے ہیں کہ اصلی میں پڑھتا ہوں، الفجر
फिल बैत, फी का मतलब होता है में, फिल बैत यानी घर में, फी का मतलब है में, और बैत का मतलब होता है घर। तो मैं मॉर्निंग का जो नमाज है, फजर का नमाज जो है, मैं घर में पढ़ता हूँ, मैं घर में पढ़ता हूँ। तो उसके फिर आगे सवाल कर रहे हैं, उसल्ली फजर फिल बैत। आगे सवाल मुस्तफ़ा का है, लिमाजा, वाई। माजा का मतलब भी होता है वाई, और लिमाजा का भी मतलब होता है वाई, क्यों। लेकिन लिमाजा वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ सवाल के बाद आप कोई भी वर्ब यूज़ कर रहे हैं। वर्ब को अरबी में बोलते हैं फ़ेल, यानी कोई फ़ेल हो रहा है, कोई काम हो रहा है, तो वहाँ पर इस्तेमाल होता है लिमाजा। और अगर इस तरह से कोई सवाल है जहाँ पे कोई वर्ब नहीं आ रहा है, कोई फ़ेल नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर इस्तेमाल होगा माज़ा। तो यहाँ पर सवाल हो रहा है, लिमाज़ा तुसल्ली अल-फज्र फिल बैत। क्यों आप फज्र का नमाज घर में पढ़ते हैं, मस्जिद में क्यों नहीं पढ़ते, घर में क्यों पढ़ते हैं। लिमाज़ा, वाई डू यू प्रेयर फज्र फिल बैत इन हाउस। आप फज्र का नमाज घर में क्यों पढ़ते हैं। तो इसका जवाब दे रहे हैं, क़ुसई जवाब दे रहे हैं कि ला अस्माउल अज़ान। ला मतलब नहीं, अस्मा यानी सुनना, अज़ान यानी जो सुबह का जो अजान होता है या किसी वक्त का जो अजान होता है, जो नमाज के लिए बुलाया जाता है, वो उसको अजान बोलते हैं। तो अजान मैं नहीं सुनता, मैं अजान नहीं सुनता। ये वो जवाब दे रहे हैं कि तुम क्यों फजर का नमाज घर में पढ़ते हो। तो मैं अजान नहीं सुनता हूँ, इसलिए मैं फजर का नमाज घर में पढ़ता हूँ। तो ला मतलब नहीं, अस्माउल अज़ान, मैं अजान नहीं सुनता हूँ। तो आगे फिर मुस्तफ़ा का सवाल है, हल तस्तैक़िदु मुतअख़्ख़रन, क्या आप लेट से उठते हैं। आर यू वेकअप लेट, आर यू वेकअप लेट, क्या आप देर से जगते हैं। तस्तैक़िदु का मतलब होता है नींद से जागना, वेकअप। यानी हल जो है सवाल के लिए क्या के लिए इस्तेमाल होता है, और तस्तैक़िदु यानी लेट, जगना, वेकअप। और मुतअख़्ख़रन जो है ये लेट, ताख़िर से बना है, मुतअख़्ख़रन यानी लेट। क्या आप लेट से जगते हैं, क्या आप लेट से सो के उठते हैं। तो क़ुसई बोल रहे हैं, नाम, जी हाँ, नाम बादस्सला, यानी नमाज के बाद मैं जगता हूँ, मेरी नींद जो है नमाज के बाद खुलती है, इसलिए मैं फजर का नमाज घर में पढ़ता हूँ। तो फिर मुस्तफ़ा उनको बोलते हैं, इस्तैक़िदु यानी वेकअप, उठो, जगो। ये ऑर्डर की तरह हो, ऑर्डर की जगह पर यहाँ पर बोला जा रहा है। इस्तैक़िदु वेकअप, उठ जाओ। मुबक्करन यानी जल्दी, जल्दी को बोलते हैं मुबक्करन, और देर को बोलते हैं मुतअख़्ख़रन, यानी देर करना मुतअख़्ख़रन, और जल्दी करना मुबक्करन। तो जल्दी उठो, क्यों लेट से उठते हो, ये मुस्तफ़ा बोल रहे हैं क़ुसई को। इस्तैक़िदु मुबक्करन यानी वेकअप अर्ली, जल्दी उठो। तो क़ुसई बोल रहे हैं, ला अस्तती यानी आई कैंट, मैं नहीं उठ सकता। ये जो है ला का मतलब नहीं, तयु का मतलब होता है मैं कर नहीं सकता, जो काम मेरे इस्तिताअत में नहीं है उसी से बना है तयु, यानी मेरी इस्तिताअत नहीं है, मैं वो काम नहीं कर सकता, मैं नहीं जग सकता। तो क्यों नहीं जग सकता, उसका रीज़न बता रहे हैं, अमलु फिल लैल, मैं रात में काम करता हूँ, मेरा वर्क जो है वो रात का है, मैं रात में काम करता हूँ, इसलिए मैं जल्दी नहीं उठ सकता। अमल का मतलब होता है काम, फ़ी का मतलब होता है में, अल-लैल यानी रात में, रात में।
अमल फिल लैल, ला अस्ततिउ, मैं नहीं जग सकता, अमल फिल लैल, क्योंकि मैं रात में काम करता हूँ। तो मुस्तफ़ा इसके लिए फिर उनको एक रीज़न बताते हैं, एक आइडिया देते हैं। दाए दाए मुनब्बे बिजानिब, दाए का मतलब होता है ज़ाए, द्वाद से है दुआए, यानी कीप, रखो, अल मुनब्बे यानी अलार्म, जो आदमी को मुतनब्बे करता हो, जगाता हो, उसको क्या बोलते हैं? अलार्म। तो अलार्म जो है उसको अरबी में बोलते हैं ज़ाए, ज़ाए बोलते हैं रखने को, और अल मुनब्बे जो है अलार्म को बोलते हैं, जगाने वाले को बोलते हैं। मुनब्बे, बी माने होता है फ्रॉम, और जानिब मतलब कि योर साइड। बिजानिबिक, बिजानिबिक का जो है यहाँ पर योर के लिए इस्तेमाल होता है। तो जाए मुनब्बे बिजानिबिक, यानी अलार्म रखो अपने पास में, अपनी तरफ में, अपने पास में, मुनब्बे रखो, जगाने वाला रखो, यानी अलार्म रखो। तो इसके लिए फिर बाद में क़ुसै जो है बोलते हैं हादिही फ़िक्र तय्यबा। हादिही इस्तेमाल इसलिए यहाँ पर होता है, दिस के लिए इस्तेमाल होता है हादा, यानी यह। और अगर कोई चीज़ जो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मुअन्नस के बारे में बताया जा रहा है, जिस तरफ इशारा कर रहा है वह मुअन्नस है, तो वहाँ पर इस्तेमाल होगा हादिही। और अगर मुज़क्कर के लिए बात होगा, जो मुज़क्कर का इशारा होगा हादा यानी दिस, तो वहाँ पर हादा का इस्तेमाल होगा, और मुअन्नस का इशारा होगा तो हादिही। तो यहाँ जो फ़िक्रा है, फ़िक्रा के आखिर में तामरबुता है। किसी भी नाउन के आखिर में, किसी भी वर्ड के आखिर में तामरबुता हो, यानी ये गोल ते हो, तो वो मुअन्नस में आता है, उसको मुअन्नस में शामिल किया, वो मुअन्नस है। तो ये फ़िक्र जो है आइडिया को बोलते हैं, और फ़िक्रा ये मतलब कि मुअन्नस है, फ़िक्रा यानी आइडिया, गुड आइडिया। हादिही, दिस इज़ गुड, मतलब तैयबा, तैयबा भी ये मुअन्नस है, यानी बेहतर, अच्छा, गुड के लिए इस्तेमाल होता है। तो हादिही फ़िक्रा तैयबा, ये बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत खूबसूरत आइडिया है। जज़ाकल्लाहु खैरन, यानी अल्लाह इसका आपको बेहतर अजर अता फ़रमाए। तो नाज़रीन इकराम, ये था आज का हमारा सबक, और आपने इस सबक में आज जो मतलब कॉन्वर्सेशन, अल-हिवार जो पढ़ा, ये नमाज के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, और इसको शेयर करेंगे। और अगर आप हमारा ये प्रोग्राम, ये वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।